جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 11 سال کی تھی، تبھی آپ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور حضور بہت ہی اداس رہنے لگے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالکل بکھر گیا، کیونکہ حضرت خدیجہ اپنی اس بیٹی حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور حضرت فاطمہ بھی اپنی امی جان سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت یاد آ رہی تھی، تو آپ نے اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائے کہ ابا جان مجھے اپنی امی خدیجہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ ایک بار فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھئے کہ میری امی جان کیسی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری امی کی طرح اس دنیا میں اور کتنی امیاں ہیں، لیکن تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری امی جان اس دنیا کی تمام ماؤں سے بہتر تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کریم اور رحیم اللہ نے تمہاری امی کو جنت میں خاص مقام عطا فرمایا ہوگا، تم بس ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ جب حضرت محمد رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دور دور سے بہت ہی شکست اور امیر لوگوں کی شادی کے پیغام آنے لگے، اور سبھی لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے کے لیے بے حد بیتاب تھے، لیکن میرے پیارے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیے۔ اور پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خود حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات کی، اور حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس نکاح کے لیے مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا اور اس کے قبض اور ایک برما کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا کہ تم اپنا برما بیچ سکتے ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا برما بیچا، اور اس سے جو رقم ملی وہی اپنے مہر کے لیے ادا کی، اور اس کے بعد ایک مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھائے، اور آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ علی، میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ان تمام صحابیوں کی موجودگی میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمدللہ کر اسے قبول کر لیا، اور کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، اسی لیے شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان کے گھر پر ہی رہنے لگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ حضرت علی کی حالات ایسے تھے کہ وہ ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکتے تھے اور باقی 2 وقت تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے رہتے تھے۔ ان کی مفلسی کا عالم یہ تھا، اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کا اپنے مائکے میں رہنا ان کو سہن نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے آپ نے بہت محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے لیے ایک گھر کرائے پر لیا، لیکن اپنے شرمیلی عادت کے کارن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے یہ نہیں کہہ پا رہے تھے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ کرائے کے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، اور من ہی من یہی سوچ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنی اس فرمائش کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور انہیں اپنی اس فرمائش کو بتایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت علی اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا، علی، فاطمہ میری لگتے جگر بیٹی ہے، اگر تم اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو لے جا سکتے۔ حضور کی یہ بات سن کر حضرت علی کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور آپ خوش ہو گئے، اور پھر حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، آج سے تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ رہنا ہے، لیکن میری پیاری بیٹی تمہیں اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کرنا ہوں گے۔ بیٹی ہر سکھ دکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتے رہنا ہے، کبھی اپنے شوہر کا دل نہیں توڑنا، نہیں کبھی دنیاوی کسی چیز کی فرمائش کرنا، برے وقت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے مسکراتی رہنا۔ بیٹی یاد رکھنا، اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کرو گی تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، اور بے شک اپنے شوہر کو خوش رکھنے پر اللہ پاک بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ اس طرح حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے شوہر کے حقوقوں کی ہدایت دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کیے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اپنے ابا جان کی ہدایت سے
हजरत अली की खिदमत करते हुए गुजार। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के साथ किराए के घर पर रहने लगी। लेकिन हजरत अली बहुत ही गरीब थे और उनके पास बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का गुजारा होता था। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी इस बात की शिकायत अपने शौहर हजरत अली से नहीं और ना ही किसी चीज के लिए अपने शौहर को मजबूर किया। एक दिन की बात है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी बीबी फातिमा के घर आए। हुजूर ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, प्यारी फातिमा दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा जान आए हैं। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आईं और दरवाजा खोला। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा का उदास चेहरा देख तो आपने फरमाया, ए बेटी फातिमा क्या हाल है? आप रोने लगी और बोली कि अब्बा जान बहुत मुफलिसी का दौर है, बीमारी है लेकिन इलाज नहीं, भूख है लेकिन रोटी नहीं। तो इस पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि ए मेरी बेटी फातिमा सब्र करो, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हजरत फातिमा बोली कि अब्बा जान मेरा आज 3 दिन का फाका है और 3 पत्थर हजरत बीबी फातिमा के पेट से बंधे हुए थे, जो 3 दिन खाना न खाने की वजह से भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए आपने अपने पेट से बांध रखे थे। जब मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया तो आपके पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। आपने कहा, फातिमा आज तेरे अब्बा जान का चौथा दिन है कि तेरे अब्बा जान के मुंह में रोटी का एक लुकमा तक नहीं गए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ ऐसे आका पर और आपकी बेटी फातिमा पर जिनके सब्र करने से अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया और आखिरत में कितना आला मुकाम अता फरमाया है। एक बार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज अदा कर रहे थे तो उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर से प्यारे हसन हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर मस्जिद नबी के पास में ही और काफी देर तक आवाज आने की वजह से मेरे हुजूर बेचैन हो गए, क्योंकि मेरे प्यारे आका अपने नवासे हसन और हुसैन से बेहद मोहब्बत करते थे और उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। काफी देर के बाद आप हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लगते जिगर बेटी फातिमा के घर गए और जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। यह मेरे हुजूर की खूबी थी कि आप अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर भी बिना इजाजत लिए अंदर नहीं जाते थे। जब आपने दस्तक दी और कहा कि बेटी फातिमा दरवाजा खोलो तो अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज आई कि अब्बा जान मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई बड़ा कपड़ा नहीं है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर हजरत फातिमा के लिए घर के अंदर दी और फिर हजरत फातिमा उसे ओढ़कर अपने अब्बा जान के सामने आई। तो हुजूर ने कहा, मेरी प्यारी बेटी हसन हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो हजरत फातिमा रोने लगी और बोली, अब्बा जान आपके प्यारे लाडले हसन हुसैन 2 दिन से भूखे हैं और आज भूख उनकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए यह रो रहे हैं। तो आपने फरमाया, हसन तो बड़ा है, मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर चुप करा देता हूँ और हुसैन तो छोटा है, वह तो अभी दूध पीता है, तुम उसे अपना दूध पिलाकर चुप करा दो। तो हजरत फातिमा ने रोते हुए फरमाया, अब्बा जान 3 दिन की भूख की वजह से मेरा दूध भी नहीं निकल रहा है, इसीलिए हुसैन भी रो रहा है। यह सुनते ही मेरे प्यारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक में आंसू आ गए और आपने हुसैन को अपनी गोद में लेकर अपनी जुबान मुबारक चूसने को दे दी और जैसे ही हुसैन ने आपकी जुबान को चूसा, अल्लाह के करम से हुसैन को भूख से राहत मिली और आपक पेट भर गए। और फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे हसन को अपने कंधे पर बैठा कर घुमाया, जिससे हसन को भी बहुत राहत मिली और उनकी भी भूख खत्म होगा। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ ऐसे आका पर जिनके इतने प्यारे प्यारे मौजज़े हैं। और फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें कयामत तक आने वाली तमाम औरतों का जन्नत का सरदार बनाया है। यह सुनकर हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बात पर नाराज हो गई और कहा, अली मैं आपकी शिकायत हुजूर से करूंगी और अपने अब्बा जान के घर जाने की इजाजत ली। हजरत अली ने हजरत बीबी फातिमा को जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत बीबी फातिमा अपने शौहर हजरत अली की शिकायत करने के इरादे से अपने अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, अब्बा जान। तो अंदर से आवाज आई कि कौन? तो आपने कहा कि मैं फातिमा। फिर दोबारा अंदर से आवाज आई कि कौन? फातिमा। तो आपने फरमाया कि आपकी लगते जिगर बेटी हजरत फातिमा। फिर अंदर से आवाज आई, कौन? अब आपने कहा कि अली की बीवी फातिमा। इस पर मेरे प्यारे आका ने फरमाया, फातिमा अगर तुम अपने शौहर को नाराज करके आई हो तो वापस चली जाओ और अपने शौहर को राजी कर लो, वरना
फातिमा कसम उस पैदा करने वाले की तुम्हारा अब्बा हश्र कयामत में भी तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। अपने अब्बा जान के मुंह से ये जुमले सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत अपने घर वापस लौट आई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को राजी करने लगी तो उस पर हजरत अली ने फरमाया कि फातिमा, मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं थी, तुम तो खुद ही हुजूर के पास गई थी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ ऐसे आका पर जिन्होंने अपनी बेटी फातिमा के जरिए अपनी उम्मत में आने वाली तमाम बेटियों को ये पैगाम भेजा कि अपने शौहर को कभी नाराज न करे। प्यारे दोस्तों, एक बार प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लगते जिगर बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लेकर गए। जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे तो उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर मौजूद नहीं थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के कामों में मसरूफ थी। तो आप प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को आजमाने के लिए कहा कि बेटी चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अब्बा जान से कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी है और अल्लाह के पैगंबर भी है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि आपको इनकार कर सकूं, लेकिन मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने आपसे ही सुना है कि अपने शौहर की इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं और मेरे शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने तक इंतजार कर। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल खुश हो गए और वहीं पर बैठकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार करने लगे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु काफी देर के बाद घर लौट। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए तो आपने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके घर पर कच्ची जमीन पर बैठे हैं। यह देखकर आप बहुत हैरान हो गए और आपको देखते ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अली, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मेरी जो भी इज्जत है वह आपके कदम मुबारक की वजह से है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको इजाजत दूं। इस पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैंने अपनी बेटी फातिमा को सिखाया है कि वह अपने शौहर की इजाजत के बिना घर से कभी ना निकले और हमेशा उसकी इतायत करती रहे। इसी वजह से मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहती है कि वह मेरे साथ जाने से पहले अपने शौहर हजरत अली से इजाजत लेगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप दुआ करना कि फातिमा के इन आमाल की वजह से कल हश्र कयामत में अल्लाह उसे और मुझे कामयाबी अता फरमा। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु चक्की पीसकर फारिग हुई। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे घर के काम खुद ही करती थी। बच्चों की परवरिश के साथ साथ वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत गुजारी भी करती थी। उनके घर में काम के लिए कोई भी कनीज मौजूद नहीं थी। आप अपना सारा काम खुद ही करती थी। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते आपके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही काटी। जब आप अपने घर के सारे काम करने के बाद फारिग हुई और नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया ही था, इतने में आपके प्यारे बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों जाकर मुसल्ले पर लेट गए और कहने लगे कि अम्मी जान, कल ईद है और सारे बच्चे ईद पर नए कपड़े पहनेंगे, तो अम्मी जान, हमें भी ईद पर नए कपड़े ही चाहिए। आपने कहा, ए मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले मुझे नमाज तो अदा कर लेने। लेकिन हजरत इमाम हसन और हुसैन जिद करने लगे कि पहले आप यह वादा करो कि कल हमें नए कपड़े मंगवा कर दोगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मुझे अभी नमाज पढ़ने दो और मैं तुम्हें कल नए कपड़े मंगा दूंगी। इस पर इमाम हसन और हुसैन ने कहा कि अम्मी जान, कल तो ईद होगी तो हमारे कपड़े कैसे सिलेंगे? तो आपने फरमाया कि बेटा फिक्र मत करो, दर्जी तुम्हारे कपड़े सिले हुए ही लेकर आएगा। यह सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए और मुसल्ले से हट गए। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की इबादत में मशरूफ होगा और हाथ ऊपर करके अल्लाह से यह दुआ करने लगी कि ए मेरे रब, तू जानता है कि मैंने अपने बेटों को नए कपड़ों की तसल्ली इसलिए दी है ताकि उनका दिल न टूटे। ए अल्लाह, मैंने तेरी रहमत पर यकीन करके अपने बेटों से नए कपड़ों का वायदा किया है। मेरे इस वायदे को मत तोड़ना और मेरे बेटों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करवा दे।
यह दुआ मांगकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करके फारिग हुई तो फिर हजरत हसन और हुसैन आपके पास आ गए और आपको अपना किया हुआ वायदा याद दिलाने लगे। अब सुबह में जब आप फजर की नमाज के लिए उठी और आपने नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैंने अपने बेटों से जो नए कपड़ों का वायदा किया है उन्हें पूरा कर दे। आप मुसल्ले से हटी भी नहीं थी कि इतने में ही आपके दरवाजे पर दस्तक हुई और आप दरवाजा खोलने के लिए गई। आपने फरमाया कौन? तो उधर से जवाब आया कि मैं आपका दर्जी हूँ और आपके प्यारे शहजादों के कपड़े लेकर आया हूँ। आपने अल्लाह की गैबी मदद समझकर उन कपड़ों को ले लिए। इसके बाद आपने हजरत हसन हुसैन को वह नए कपड़े पहनाए और बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हो गए और दौड़ते हुए मस्जिद नबी में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कि अपने नाना जान से मिलने के लिए चले गए। जब हुजूर ने प्यारे हसन हुसैन को नए कपड़ों में देख तो आपका दिल खुश हो गया और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर हजरत फातिमा के घर की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। जब आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँच तो आपने जाकर पूछा है फातिमा क्या हाल है? तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुफलिसी का दौर है। तो आपने कहा कि यह कपड़े कहाँ से आए हसन और हुसैन? तो हजरत फातिमा ने कहा इस बात का जवाब तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर देंगे। तो आपने कहा कि यह फातिमा जो दर्जी तुम्हारे घर यह कपड़े लेकर आया था वह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ने हसन और हुसैन के लिए यह जन्नती पोशाक लेकर भेजा था। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। सुभान अल्लाह क्या मर्तबा है हसन और हुसैन का कि अल्लाह पाक आपके लिए जन्नती पोशाक भेजता था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और हजरत फातिमा की जिंदगी से जुड़ी वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।